مری میں بھرپور امدادی کارروائیاں جاری، اہم شاہراہوں سے برف ہٹا دی گئی، جام بحق ہونے والے 22 افراد کی میتیں آبائی علاقوں کو روانہ، برف میں پھنسے بیشتر افراد کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر اسلام آباد میں عارضی پناہ گاہ بھی قائم کر دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سانحہ مری کی تحقیقات کا حکم دے دیا، مستقبل میں ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے سخت قواعد و ضوابط بنانے کی ہدایت۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا بھی سانحہ مری پر اظہار افسوس۔ مری ایکسپریس وے کو کھول دیا گیا، مقامی لوگوں اور انتظامیہ کے ساتھ فوج، ایف سی اور رینجرز کے دستے ریسکیو میں پیش 4 امدادی کیمپ قائم، سیاحوں کو کھانا، پانی، چائے اور محفوظ ٹھکانے فراہم کر دیے گئے۔ ISPR ڈونگا گلی سے چھانگا گلی تک سڑک ٹریفک کے لیے کھول دی گئی، چھانگلا سے باڑیاں تک 8 کلومیٹر کا علاقہ بھی کلیئر کرا لیا گیا۔ ڈونگا گلی سے بگنوتر تک 23 کلومیٹر شاہراہ سے بھی برف ہٹا دی گئی۔ جلد نتھیا گلی ایبٹ آباد روڈ کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا جائے گا۔ ترجمان گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ حکومت پوری طرح الرٹ، شدید برف باری کے باعث صورتحال خراب ہوئی، اپوزیشن متاثرین کی داد رسی کے بجائے آج بھی سیاست چمکانے میں مصروف ہے۔ وفاقی وزراء چودھری فواد حسین اور شفقت محمود کی نیوز کانفرنس۔ وزیر خارجہ رومانیہ اور اسپین کے سرکاری دورے پر روانہ، پہلے مرحلے میں رومانیہ کی وزیر خارجہ سمیت سرکردہ شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ 10 سے 12 جنوری کے دوران اسپین اپنے ہم منصب اور ارکان پارلیمنٹ سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی میں مسلسل اضافہ، سری نگر، بڈگام، شوپیاں اور کولگام میں نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کرنا سفاکیت کی بدترین مثال۔ اقوام متحدہ قتل و غارت، غیر قانونی گرفتاریوں اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ پاکستان میں کرونا کیسز میں ایک بار پھر اضافہ، مثبت کیسز کی شرح 3.16% ہو گئی۔ ایک دن میں 1572 نئے کیس رپورٹ، 7 افراد لقمہ اجل بنے۔ ویکسین لگوائیں، اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیاں محفوظ بنائیں۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی، 24 گھنٹے کے دوران ریکارڈ 20 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ، 4,500 سے زائد ہلاکتیں۔ امریکہ میں 3,63,000، فرانس میں 3,03,000 اور برطانیہ میں 1,40,000 سے زائد کیسز سامنے آ گئے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں رات کا کرفیو نافذ۔ یوکرین کے مسئلے پر امریکہ روس مذاکرات آج جنیوا میں ہوں گے۔ روسی مطالبات محض دکھاوا ہیں، ہر طرح کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن سفارتی حل کو موقع دیا جانا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف کا روس کے ساتھ یوکرینی سرحد کا دورہ۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 7 سپلیمنٹری اور ریپلیسمنٹ ڈرافٹ مکمل، کراچی کنگز نے جارڈن کو اسکواڈ میں شامل کر لیا۔ بین ڈنک ایک بار پھر لاہور قلندرز کا حصہ، ملتان سلطان نے ڈیوڈ ولی اور جانسن چارلز کا انتخاب کیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹر نے لیوک ووڈ، وولسمڈ اور شمرون ہیٹمائر کو منتخب کر لیا۔ PSL 7 کا آغاز 27 جنوری سے 27 فروری تک کراچی اور لاہور میں شیڈول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں ہما ملک۔ سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔
खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाह करेंगे आपको। मरी में गुज़श्ता रोज़ के अलमनाक सानहे के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अहम शाहराहों से बर्फ हटा दी गई है और जाँ बहक होने वाले 22 अफराद की मैयतों को उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया है। इनमें से 8 अफराद की मैयतें इस्लामाबाद, 7 की रावलपिंडी, 4 की मर्दान, 2 की लाहौर और 1 की गुजरावाला रवाना की गई है, जबकि बर्फ़ में फंसे बेशतर अफराद को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। मकामी इंतजामिया, NDMA, पाक फौज, FC और रेंजर्स के दस्ते इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर इस्लामाबाद में आर्जी पनागाह भी कायम कर दी गई है। मरी में इमदादी कार्रवाइयों की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, शाहराओं सयाहों के बारे में क्या अपडेट है, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है मरी में मौजूद पाकिस्तान टेलीविज़न के नुमाइंदे फ़हद जावेद से। फ़हद, सबसे पहले तो ये आगाह कीजिएगा कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल इस वक्त मरी में देख रहे हैं? फैसल भाई, ऐसे नहीं। मरीब से हम अपना रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं अपने नुमाइंदे फ़हद जावेद से, जो इस वक्त मरी में मौजूद हैं और मरी की ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ के अलमनाक सानहे के बाद इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बेशतर शाहराएँ ऐसी हैं जिनको क्लियर कर दिया गया है। फ़हद से हमारा रब्ता एक बार फिर बहाल हुआ है, उनके जाने बढ़ेंगे। फ़हद, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त मरी में और गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है किस हद तक सड़कों को कामयाब हुई है क्लियर करने में? जी नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे से हमारा रब्ता जो ही बहाल होता है हम आपको ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह करेंगे। आपको बताते चलें कि मरी में गुज़श्ता रोज़ के अलमनाक सानहे के बाद से इमदादी कार्रवाइयाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। आपको बताते चलें कि अहम शाहराहों से बर्फ़ हटाने का अमल भी जारी है और अब तक कई सड़कों से बर्फ़ हटाकर उनको आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है, जबकि अफराद को और जो लोग वहाँ पर फंसे हुए थे बर्फ़ में उनको मेडिकल भी फराहम किया गया है, उनको फूड और शेल्टर भी फराहम कर दिया गया है और इस तरह से बहुत सारे जगहों को क्लियर करा दिया गया है। लेकिन ताहाल अभी कुछ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिस हवाले से हम अपने नुमाइंदे फ़हद जावेद से इस वक्त रब्ता करेंगे। फ़हद, बताइएगा अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है मरी की? आपको आगाह करें कि मरी की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, बहुत सी शाहराएँ क्लियर कर दी गई हैं। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी, इसके साथ साथ रेंजर्स के दस्ते और जो ज़िले इंतज़ामिया है वो मरी के बहुत से जो इलाके हैं जहाँ पर ताहाल बर्फ़ जमी हुई थी उसको क्लियर करवा रही है। और आज भी जो ताज़ा तरीन अपडेट हैं वो ये है कि मरी जाने वाले जो तमाम रास्ते हैं उनको सयाहों के लिए बंद किया गया है। सिर्फ उन लोगों को मरी जाने की इजाज़त दी जा रही है जिनके पास शनाख्ती कार्ड में मरी का एड्रेस मौजूद है। इसके साथ साथ गुज़श्ता रात से हम देख रहे हैं कि तकरीबन मजीद 600 से 700 गाड़ियां जो हैं उनको रेस्क्यू किया गया था और वहां पर मौजूद जो फंसे अफराद हैं उनको शेल्टर्स फराहम किए गए थे वहां पर मौजूद इंतजामिया की जानिब से। इसके साथ साथ वफाक की जानिब से भी हम देख रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर एक खुसूसी आर्जी पनागाह जो है वो भी कायम की गई है ताकि वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनको शेल्टर फराहम किया जा सके। फ़हद जावेद इस वक्त मरी में मौजूद हैं, हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमारा उनसे रब्ता बहाल होता है उनसे मजीद जानेंगे। फ़हद, बताइएगा अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो ये फरमाइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है मरी की और जो शाहराएं हैं मेन उनको क्या क्लियर कर दिया गया है? जी, मरी के अंदर इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू कर दी गई थी गुज़श्ता रात से और इस वक्त जो है मरी से जिका गली तक जो है वो तमाम रास्ता क्लियर कर दिया गया है। लेकिन जो गलियात के इलाके हैं वो जुज़वी तौर पर खुले हैं और अभी वहाँ से बर्फ़ हटाई जा रही है। आपको ये भी बताऊं कि मरी में दाखिले के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है, सियाहों को पाबंद किया गया कि वो मरी के अंदर नहीं आएंगे। इस हवाले से एक्सप्रेस वे के ऊपर पुलिस की चौकियाँ कायम कर दी गई हैं जहाँ से वो ID कार्ड देखने के बाद मरी के अंदर दाखिल करने लोगों को, सिर्फ उन लोगों को मरी में आने की इजाज़त है जिनके पास मरी का अपने मरी के रिहायशी है या मरी का ID कार्ड है। इसके अलावा सियाहों की जो मरी में दाखिले पर
हुक्म सानी पाबंदी आयद की गई है। यहाँ पर मेरे कैमरामैन आपको पीछे दिखा सकेंगे कि यह जो गाड़ियाँ हैं इन पर अभी भी बर्फ़ मौजूद है। स्याहों की बड़ी तादाद को, तकरीबन 5,000 के करीब स्याहों को यहाँ से निकाला गया है। लेकिन एक जो बड़ा मसला है वो ये है कि गाड़ियाँ अभी जो हैं वो बर्फ़ के अंदर फंसी हुई हैं। लोकल इंतज़ामिया, पुलिस और जो NHA है वो इन गाड़ियों को कोशिश कर रहे हैं कि बर्फ़ के अंदर से हटाया जा सके और यहाँ से जो है इन गाड़ियों को स्टार्ट किया जाए ताकि ये जो सयाह है वो यहाँ से निकल सके, उनकी नकल मकानी का अमल जो है मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा कल रात तक जो है 5,000 के करीब सयाहों को मरी से निकाला गया था और यहाँ पर जो तमाम सरकारी इमारतें हैं उनको रेस्ट हाउस और जो वो डिक्लेयर किया गया रियासत की तरफ से, ताकि जो लोग हैं यहाँ पर सयाह हैं वो उन गेस्ट हाउस के अंदर रहें और उनकी पजीराई की जा रही है हुकूमत की तरफ से। दूसरी तरफ जो ख़ास अहकाम जारी किए गए हैं कि जो लोग हैं उनसे भी इल्तमास की गई है इंतज़ामिया की तरफ से कि वो मरी मत आएँ। और यहाँ पर आप मेरे पीछे भी देख सकेंगे कि सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो वापसी की तरफ इनखला उनका जारी है, गाड़ियाँ जो हैं वो वापस जा रही हैं। जी फहद, ये बताइएगा कि जो मैयतें हैं, अनफॉर्चुनेटली जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, उनको किन किन मैयतों को, यानी कितनी तादाद में मैयतों को उनके भरोसा के हवाले कर दिया गया है? जी, जो मैयतें थी उनको DHQ मरी से जो है वो पिंडी सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। इस हवाले से खसूसी काउंटर भी AC मरी के दफ्तर के अंदर और पिंडी इंतज़ामिया ने जो है DC पिंडी के ऑफिस में भी एक दफ्तर कायम किया गया है, जहाँ पर इन मैयतों के हवाले से तमाम तफसीलात जो लोग हैं इनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया था और लवाकिन को मैयतों की हवालगी का अमल भी शुरू किया जा चुका है। कुछ मैयतें जो है वो लवाकिन के हवाले कर दी गई हैं और शनाख्त होने के बाद बाकी मैयतें भी जो है वो हवाले कर दी जाएंगी। अफसोसनाक खबर थी कि 22 जो अफराद हैं वो गाड़ियों के अंदर दम घुटने और सर्दी के बायस जहाँ बक हुए थे। यहाँ पर अब जो लोग हैं उनके इनखला का अमल जारी है। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला पंजाब जो है उस्मान बुज़दार वो भी यहाँ पर मरी आएंगे और इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा लेंगे और आला सतही इजलास है जिसकी वो यहाँ पर सदारत भी करेंगे। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी अब से कुछ देर बाद मरी पहुंचेंगे और ख़ुद जो है वो इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। बहुत शुक्रिया फ़हद जावेद, आप हमें अपडेट्स दे रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानह मरी की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना है कि वो मरी के रास्ते में सयाहों की अलमनाक अमवात पर नहायत मुस्तरब और दिल गिरफ्ता हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सानयात की रोकथाम के लिए कड़े कवायद लागू करने के अहकाम सादिर कर चुका हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि गैर मामूली बर्फबारी और मौसमी हालात को मलहूज़े खातर रखे बगैर लोगों की बड़ी तादाद में आमद हुई, जिसके लिए ज़िले इंतज़ामिया खातर ख्वाह तैयार नहीं थी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी मरी में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार करते हुए अहले खाना से हमदर्दी और सब्र जमील की दुआ की है। और आपको अपडेट करें कि वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार मरी पहुंच गए हैं, जहां वो बर्फबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आला को इमदादी सरगर्मियों के बारे में भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और IG पंजाब राव सरदार अली खान रात भर मरी में रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करते रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे हसन तारिक पट से। हसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार हैं वो मरी पहुंच गए हैं, बल्कि इनफैक्ट मेरी इत्तलात के मुताबिक उनको इस वक्त जो है वो ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जा रही है। इसके बाद जो वो मुतासरा इलाके हैं उनका दौरा भी करेंगे और वहाँ पर जो इमदादी सरगर्मियाँ चल रही हैं, जो रिलीफ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनका भी जो है वो जायज़ा लेंगे। यहाँ पर मैं ये बात कहता चलूँ कि जो रावलपिंडी ज़िला की जो इंतज़ामिया है वो मुसलसल तकरीबन ऑलमोस्ट एक दिन हो गया है, ऑल ओवर ये दूसरी नाइट चल रही है बल्कि, कि वो वहीं पर मौजूद हैं, जिसके अंदर हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो मौजूद हैं, कमिश्नर साहब मौजूद हैं, इसी मरी हैं। और इसके अलावा रावलपिंडी ज़िला में जो DC ऑफिस है वहाँ पर एक अंदर कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। वहाँ पर मुकामी मरी के अंदर भी APS के अंदर कोल्डना के अंदर कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। जो ऑपरेशन है वो फुल स्विंग के अंदर जारी है। ज़्यादातर इलाके जो हैं उनको क्लियर कर दिया गया है। मरी एक्सप्रेस वे को कल रात ही क्लियर कर दिया गया था। आज जो है अब आज सुबह से धूप निकलने के बाद जो नथिया गली एबटाबाद रोड है वो ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बहाल है। 23 किलोमीटर डोंगा गली टू बगोतर जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पे क्लियर है। 13 किलोमीटर का डोंगा गली टू छांगा गली वो भी साफ कर दी गई है। 8 किलोमीटर की छांगा गली टू बाड़ियां भी जो है वो क्लियर है। सिर्फ कोल्डना के कुछ इलाके हैं जहाँ पर जो है जो इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया हसन तारिक भट्ट, आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि डूंगा गली से छांगा गली तक सड़कों से बर्फ हटा दी गई है और छांगला से बाणिया तक 8 किलोमीटर का इलाका भी क्लियर करा लिया गया है।
ڈونگا گلی سے بگونتر تک 23 کلومیٹر شاہراہ سے بھی برف ہٹا دی گئی ہے۔ ترجمان گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی احسن حمید نے پی ٹی وی کو بتایا ہے کہ دھوپ نکلتے ہی نتیا گلی ایبٹ آباد روڈ کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ سے بھگنوتر کا 23 کلومیٹر کا پیچ ہے، یہ ہم نے کلیئر کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ 13 کلومیٹر جو ہمارا ڈونگا گلی ٹو چھانگلا گلی روڈ ہے، اس کو بھی ہم نے برف سے صاف کر دیا، اور ہمارے پاس جو چھانگلا گلی ٹو باڑیاں روڈ آتا ہے 8 کلومیٹر، اس سے بھی ہم نے برف صاف کر دی ہے۔ جس طرح ہی گلیات کے اندر دھوپ کا سلسلہ سٹارٹ ہوگا، سڑکوں سے فراسٹ کا اور سلپ کا معاملہ ختم ہوگا، تو انشاءاللہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو ہماری ہیوی مشینری ہے اس کے ساتھ ہی ہم گلیات کے اندر جو ہمارے مہمان ہیں، جو ہمارے ٹورسٹ ہیں ہوٹل کی پریمیسز کے اندر، ان کو ہم محفوظ طریقے سے جو نتیا گلی ایبٹ آباد روڈ ہے اس کے تھرو ہم ان کو چیک آؤٹ کریں گے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 300 سے زائد سیاحوں کو پاک فوج کے ڈاکٹروں اور پیرامیڈکس کی ٹیم کی طرف سے طبی امداد فراہم کر دی گئی ہے۔ جھیکا گلی، کشمیری بازار، لوئر ٹوپا اور کلڈنا میں پھنسے ہوئے 1000 سے زائد لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء بھی فراہم کی گئی ہیں۔ سیاحوں کے لیے ملٹری کالج مری، سپلائی ڈپو، اے پی ایس اور آرمی لاجسٹک اسکول کلٹنا میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ رہائش فراہم کی گئی ہے۔ آرمی انجینئرز کے دستے نے ہیوی مشینری کے ذریعے جھیکا گلی سے کلٹنا اور دیگر سڑکوں سے برف ہٹا دی ہے۔ جھیکا گلی سے ایکسپریس وے اور گھڑیال سے بھربن تک ٹریفک معمول کے مطابق ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ مری کی تمام اہم شاہراہوں کو ٹریفک کے لیے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ راولپنڈی پولیس، ضلعی انتظامیہ، پاک فوج کے جوان اور ہمارے مقامی لوگ رات بھر متحرک رہے ہیں، جبکہ راولپنڈی اور اسلام آباد سے مری آنے والے راستوں پر پولیس موجود ہے۔ راستے آج بھی بند رہیں گے۔ مری میں برفانی طوفان کے دوران ہونے والے جانی نقصان کی وجوہات کے حوالے سے اہم حقائق سامنے آئے ہیں۔ بیشتر ہلاکتیں شدید سردی اور گاڑیوں کی ہیٹرز کی زہریلی گیس سے واقع ہوئی ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے شاہ رخ شفیع کی رپورٹ۔ مری اور گلیات میں جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب پیش آنے والے سانحہ کے بارے میں بعض انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق برفانی طوفان میں محصور سیاح گاڑیوں میں ہیٹرز کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے۔ بتایا گیا ہے کہ ہیٹر سے آکسیجن کا خاتمہ دم گھٹنے کا سبب بنتا ہے۔ شدید برف باری کی وجہ سے گاڑیوں کے سلنسر برف میں دھنس جانے سے بند ہوئے اور ہیٹر کی گرم ہوا زہریلی گیس کاربن مونو آکسائڈ میں تبدیل ہو گئی، جس سے گاڑیوں میں سوار افراد بے بسی کے عالم میں دم گھٹنے سے زندگی کی بازی ہار گئے۔ مری میں متاثرین کی مدد کے لیے مسلح افواج اور ریاستی ادارے پوری طرح سرگرم ہیں۔ جھیکا گلی اور کلڈنا کے درمیانی علاقے میں سڑک بھی زیادہ کشادہ نہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک جام رہی۔ شدید برف باری میں سڑکوں پر درختوں کا گرنا بھی ٹریفک کی روانی میں بڑی رکاوٹ ثابت ہوا۔ پنجاب سائڈ سارا تقریباً جو پھنسی ہوئی گاڑیاں وہ نکال چکے ہیں۔ گاڑیاں صرف گلڈنا اور باڑیاں میں پھنسی ہوئی ہیں، باقی یہ روڈ کافی حد تک 70-80% ہم نے روڈ کلیئر ہے۔ اگر کہیں دور دراز کسی جنگل میں بھی کوئی پھنسا ہے تو اس کو بھی ہم ڈھونڈ نکالیں گے انشاءاللہ۔ برفانی طوفان کے دوران سب سے زیادہ ہلاکتیں کلڈنا باڑیاں روڈ پر ہوئیں۔ اس سڑک پر ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے برف نہ ہٹائی جا سکی اور سیاح گاڑیوں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں اسلام آباد پولیس کے ایک ASI بھی شامل ہیں۔ مری ایکسپریس وے ہے وہ آلریڈی جو ہے نا وہ کھول دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو کلڈنا سے گوڑا گلی راولپنڈی روڈ ہے وہ کھول دی گئی ہوئی ہے۔ ریسکیو کر کے لوگوں کو امدادی سامان نہیں بلکہ ان کو جہاں پہ شیلٹرز اویلیبل ہیں، جہاں پہ کیمپ اسٹیبلش کیے گئے ہیں وہاں پہ پہنچایا جائے۔ اس میں لوگوں کو جو ہے نا وہ لوکل ریسٹورینٹس میں بھی ایڈیشنل کیپیسٹی پہ اکوموڈیٹ کیا گیا ہے۔ برفباری ہوئی تقریباً 34 ملی میٹر انچ ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی پنجاب اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مزید ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ شاہ رخ شفیع، PTV نیوز۔ اسلام آباد پولیس کا مری میں پھنسے سیاحوں کو نکالنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ سیاحوں کو پولیس کی گاڑیوں میں فیض آباد سمیت دیگر مقامات تک پہنچایا جا رہا ہے۔ پولیس کے سینئر افسران بھاری نفری کے ہمراہ 17 میل ٹول پلازا پر موجود ہیں۔ آئی جی اسلام آباد محمد احسن یونس کی ہدایت پر آخری سیاح کے انخلا تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ اسلام آباد پولیس اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے اب تک ہزاروں سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر چکی ہے۔ وزیر اطلاع چودھری فواد حسین کہتے ہیں کہ مری اور ملحقہ بالائی علاقوں میں غیر معمولی برف باری سے کئی دہائیوں کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ ایکسپریس وے کو کلیئر کر دیا گیا ہے اور لوگوں کے انخلاء کا عمل جاری ہے۔ لاہور میں وزیر تعلیم شفقت محمود معاون خصوصی عثمان ڈار کے ہمراہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ریسکیو ادارے اور فوج متاثرہ علاقوں میں موجود ہے۔ اپوزیشن اس حساس معاملے پر بھی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مزید تفصیل نوید حیات سے۔ وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا غیر معمولی برف باری ہوئی جس کے نتیجے میں مری میں صورتحال خراب ہوئی۔
उन्होंने कहा कि इंतजामिया, रेस्क्यू और फौज के जवान मरी और उसके मुल्हिका इलाकों में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि नथिया गली की तरफ से भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम रास्ते खोल दिए हैं। तमाम बलाई इलाकों में, सिर्फ मरी ही को नहीं लीजिए, तमाम बलाई इलाकों में इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है और वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है। जब हम कहते हैं कि टूरिज़्म जो है वो बढ़े, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 48 घंटों में वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग चले जाएंगे, तो कोई भी ज़ाहिर है वो क्लैप्स कर जाएगा सिस्टम। मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह गवर्नमेंट जो है वो अलर्ट है, हम लोगों के पीछे खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला ये सूरत हाल जो है वो बेहतर हो रही है। एक्सप्रेस हाईवे खुल गई है, बाकी इलाके जो हैं वो भी खुल जाएंगे और लोगों की इवैक्यूएशन का काम जो है वो जारी है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मरियम नवाज बेहिसी की सियासत कर रही हैं। शाहिद हकान अब्बासी जिस हलके से मुंतखब हुए, उस हलके की मदद के लिए वहाँ जाना चाहिए था, मगर वो रावलपिंडी में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 6 से 8 माह में बड़ी मछलियाँ तालाब से बाहर होंगी। एहतसाब के हवाले से नवाज शरीफ को सज़ा हो चुकी है, मरियम नवाज़ को सज़ा हो चुकी है, शहबाज शरीफ के जो हमज़ा के केसेस हैं वो अदालत में फ़ाइल हो चुके हैं। जो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अगले 6 से 8 महीने हैं, इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ जो हैं वो इस तालाब से बाहर हो जाएंगी। जरदारी साहब के ओमनी अकाउंट्स वाला जो केस है, उसमें कुछ 12 अरब से ज़्यादा की जो है वो रिकवरी हो चुकी है। लॉन्ग मार्च का क्या है, ये एक्चुअली इनका लॉन्ग गवाचा हुआ है, ये उसकी तलाश में निकले हुए हैं। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बिलावल साहब जो हैं उनकी आपस में क्या कोई आइडियोलॉजी मिलती है, शहबाज शरीफ साहब की बिलावल से क्या बात मिलती है, और इन दोनों की फजलुर रहमान साहब से क्या मिलती है। सो बेसिकली ये सारे जो हैं ये आप समझें कि चूं चूं का मुरब्बा है। वफाकी वज़ीर तलीम शफकत महमूद ने कहा, पंजाब एडवाइजरी कमेटी के इजलास में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात और टिकटों के इजरा पर बात हुई। उन्होंने कहा कि पंजाब में PTI को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए तंजीम साजी की जाएगी। तंजीम जो है उसके 3 जो हिस्से हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, नेबरहुड काउंसिल या विलेज काउंसिल, उसके बाद PP लेवल पे, प्रोविंशियल असेंबली के हल्के के लेवल पे, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और द नेक्स्ट ईयर जो है वो प्रोविंशियल लेवल होगा। नौजवानों के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन हुसूसी उस्मान डार ने कहा कि मरी सूरत हाल में टाइगर फोर्स के नौजवान भी इमदादी सरगर्मियों में पेश हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद असर ने कहा है कि मरी शहर के बिजली के तमाम फीडर्स बहाल हैं। ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि चंद मकामी फॉल्स की मरम्मत भी जारी है। उन्होंने कहा कि ISCO के मुलाजमीन ने शदीद बर्फबारी के दौरान भी मरम्मत और बहाली का काम हिम्मत से जारी रखा। कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी रोमानिया और स्पेन के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा अपने दौरे के पहले मरहले में आज और कल रोमानिया का दौरा करेंगे। वो रोमानिया में अपने हम मनसब समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन में इजाफ़े समेत अहम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अपने दौरे के दूसरे मरहले में 10 से 12 जनवरी तक स्पेन का दौरा करेंगे। अपने दौरा स्पेन में वज़ीर ख़ारजा अपने हिस्पानवी हम मनसब और हिस्पानवी पार्लियामेंट के अरकान से मुलाकातें करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी से मुख्तलिफ हादसात में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 12 अफराद जाम बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। मुतासरा अज़ला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसील बता रहे हैं मुदस्सिर खान। दीरबाला के इलाके डोगदरा में शदीद बारिशों और बर्फबारी की वजह से मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जम बहक हो गए। जम बहक अफराद में माँ, 3 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। PDMA खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दीरबाला और रोर कोहिस्तान में दीगर हादसात के नतीजे में 3 अफराद जाम बहक जबकि 1 जख्मी हुआ। दीरबाला के इलाके अबाकुंड में मकान पर तोदा गिरने से 1 लेवी सिपाही और 1 खातून जाम बहक हुई। इसी तरह लोअर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर 1 मोटरसाइकिल सवार जम बहक हुआ। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक जिला खैबर की तहसील बाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से 7 मकामात मुनहदिम हुए, जिससे 2 बच्चों समेत 3 अफराद जम बहक हुए। इन हादसात में मुतअद्दिद अफराद भी जख्मी हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की हिदायत पर मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतलका अजला की इंतजामिया को हिदायत की गई है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोई भी शख्स खुले आसमान तले रात ना गुजारे। तकरीबन 7,500 के करीब गाड़ियां वहां से निकाली जा चुकी हैं और उसके अलावा तकरीबन 10,000 से ज़ायद गाड़ियों को
एबटाबाद के रास्ते बगनोतर और मरी की तरफ से आने वाले मकाम बाड़ियों पर रोक कर वापस किया जा चुका है ताकि इस इलाके में ट्रैफिक का रश मजीद ना बढ़े। बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र ज़िली इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों को इक़दामात करने और अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। PDMA के मुताबिक बालाई अजला में बारिश और बर्फबारी की वजह से मजीद लैंड स्लाइडिंग और सड़कों के बंद होने का खदशा है। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी के बायस बेशतर इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है। इंतज़ामिया की जानिब से शहरों को बालाई इलाकों का रुख न करने की हिदायत की गई है। अदील अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 3 जनवरी से शुरू हुआ। वक्फों से जारी बारिश और बर्फबारी के साथ ही सर्दी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया है और लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। 6-7 साल के बाद इतनी हैवी स्नोफॉल हुई है सराउंडिंग मुजफ्फराबाद के सराउंडिंग में, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है और यहाँ के लोकल रेजिडेंशियल लोगों को जो खुसूसन साइड एरिया पे लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनके, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी हैवी स्नोफॉल होगी। जी जनाब, ये बहुत अरसे के बाद ये बर्फ तकरीबन 5-6 साल के बाद ये ज्यादा बर्फ पड़ी है और उसमें जो बहुत मुश्किलात ज्यादा पैदा हुई हैं और रिहाइश की भी और आगे पीछे परेशानी बहुत ज्यादा हुई है। वादी नीलम, जहलम, पुंछडुयन और जिला कोटली के इलाके नक्याल में बर्फबारी से निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है। बर्फबारी के बायस वादी नीलम और जहलम के बालाई इलाकों और दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के दरमियान ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। आज़ाद कश्मीर में खराब मौसम के पेश नज़र स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इंतजामिया की जानब से शहरियों को बालाई इलाकों की जानब सफर न करने की हिदायत जारी की गई है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पीर चनासी, जिला मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। हालिया बारिश और बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में NDMA, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड्स और दीगर इदारे मुसलसल रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं। गवादर में मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया है। केज के मुतादिद इलाकों से भी पानी निकाल दिया गया है, जबकि कोयटा में मेहतरजई से खोजक चोटी तक बर्फ हटाने के लिए ऑपरेशन जारी है। रिलीफ सरगर्मियों का अहवाल आपको बताएंगे कोयटा से सरफराज शेख। बलूचिस्तान में हालिया बर्फबारी और बारिशों से मुतासिर अजला में शहरी और दही इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ। तहम हुकूमती इक़दामात की बदौलत मुतासिरीन की इमदाद व बहाली का काम भरपूर अंदाज में जारी है। मकरान डिवीज़न कोस्टल बेल्ट बारिशों में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। आफतज़दा करार दिए जाने वाले अजला गवादर, केच और तुरबत में पाक आर्मी, नेवी, FC बलूचिस्तान, NDMA और PDMA समेत ज़िला इंतज़ामिया और दिगर मुतल्लिक़ा इदारे मुतासिरीन की इमदाद व बहाली के लिए कोशा हैं। पाक आर्मी और रेड क्रिसेंट की जानिब से मुतासिरीन के बेहतर इलाज मुआलजे के लिए 3 मुश्तरका मेडिकल कैंप्स लगाए गए। शदीद सर्दी में मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान और अशिया खुर्दनोश पहुँचाने के लिए NDMA और प्रोवेंशल डिजास्टर मैनेजमेंट और दिगर इदारे मुसलसल मसरूफ़ अमल हैं। ऊथल में तूफ़ानी बारिश से एक घर की छत गिरने से 3 कमसिन बच्चे जाँ बहक, जबकि उनके वालिदैन ज़ख्मी हुए। वडखुजदार में भी एक शख्स छत गिरने से जाँ बहक हुआ। खिला सैफुल्ला में 2 ख़वातीन और 3 बच्चे भी कच्चा मकान मुनहदम होने से ज़ख्मी हुए। सरहदी शहर चमन में 100 से ज़ायद कच्चे मकानात को नुकसान पहुँचा। खैमों में क़याम पजीर हरनाई के ज़लज़ला ज़दागान मुतासिरीन भी बारिशों और बर्फबारी में मुश्किलात से दो चार रहे। मौसमी हालात के तनाजुर में हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात काबिल सताइश हैं, जिससे मुतासिरीन की इमदाद व बहाली के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। मुल्की सतह पर कोरोना वायरस की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 49,658 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,572 केसेस मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.16% रिकॉर्ड की गई। वबा से मजीद 7 अफराद लुक़मा अजल बने। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के 604 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में 16 करोड़ 14 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। कोरोना के अगर आलमी असरात की बात करें तो आलमी सतह पर भी कोरोना वायरस के फैलाव में तेज़ी आ गई है। 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 20 लाख से ज़ायद केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 4,500 से ज़ायद अमवात हुई हैं। अमरीका में 3,63,000, फ्रांस में 3,03,000 और बरतानिया में 1,46,000 से ज़ायद केसेस सामने आए। ओमिक्रॉन ने भारत की कई रियासतों में तबाही मचाना शुरू कर दी है। केसेस की यौमिया शरह 3 गुना बढ़ गई। 24 घंटे के दौरान भारत में 1,47,000 से ज़ायद केस रिपोर्ट हुए, जबकि 285 हलाकतें भी हुई।
दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। कोलकाता में हर दूसरा शख्स कोरोना से मुतासर हो रहा है और शहर में इन्फेक्शन की शरह बढ़कर 53% पे आ गई है। रियासत मगरबी बंगाल में भी बीमारी तेज़ी से फैल रही है, जहाँ मगरबी बंगाल में इन्फेक्शन की शरह 26% हो गई है। सऊदी अरब के बाद कुवैत ने भी कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के तेज़ी से फैलाव के पेश नज़र मसाजिद में सख्त पाबंदियाँ नाफिज की हैं। कुवैत ने मुल्क भर की मसाजिद में समाजी फासला रखने, मास्क पहनने, मेल जोल से परहेज़ करने और अपनी जाय नमाजें साथ लाने की पाबंदियाँ नाफिज की हैं, जबकि नमाज और खुतबे के दौरान दरवाजे खिड़कियाँ खुली रखने की हिदायत की गई है। और नाज़रीन, जनूबी पंजाब में एहसास प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मनसूबों के बारे में हमारे नुमाइंदे ख्वाजा कलीम ने वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपसे शेयर करते हैं। फीडबैक मिल रहा है, उससे आप किस कदर पुरुम्मीद हैं? जी, मुझे तो बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। साउथ पंजाब में एहसास के दायरा कार में बहुत से प्रोग्राम हैं। एहसास के फ़ालत का बहुत वसी दायरा कार यहाँ है। एहसास बच्चों के तालीमी वज़ाइफ का जो प्रोग्राम है वो बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है। इसके अलावा एहसास नशो नुमा साउथ पंजाब के 2 अजला में सेंटर खुल चुके हैं और दीगर अजला में सेंटर बहुत जल्द इसी माली साल में खोले जाएंगे। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो है साउथ पंजाब की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त दी जा रही हैं। इसके अलावा हमारी जो एहसास राशन का जो प्रोग्राम है वो साउथ पंजाब के हर यूनियन काउंसिल में उसकी दुकानें जो है वो रजिस्टर हो रही हैं। जी, इसका टोटल जो इसका हुजम है वो कोई 260 अरब है, जो चारों एजेंसीज जो इससे इम्प्लीमेंट करती हैं। और पहले 6 महीने में के मुताबिक से इन कंपैरिजन जो अगला 6 महीना है उसमें डिप्लॉयमेंट बहुत तेज़ होती है। पिछले 3 साल में भी जो हमने बजट खर्च किए हैं उसका यही तनासुब रहा है कि 1/3 ऑफ द बजट पहले 6 महीने में खर्च होता है और 2/3 ऑफ द बजट नेक्स्ट 6 महीने में खर्च होता है। एहसास के फ़ालत, एहसास बच्चों की तालीमी वज़ाइफ और एहसास राशन जो हैं वो बहुत अहम है कि लोग इससे इस्तेफादा करें। जी, डॉक्टर सानिया निश्तर हमारे साथ थी जिन्होंने बताया कि एहसास प्रोग्राम के तहत जो मुख्तलिफ मनसूबे चल रहे हैं 260 अरब रुपए उनका टोटल बजट है। बात करते हैं भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हक़ खुदरादियत के हुसूल के लिए कश्मीरियों की मुनसिफाना जदोजहद को दबाने की गर्ज से फ़िस्ताई मोदी हुकूमत की तरफ से इलाके में रियासती दहशत गर्दी में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान श्रीनगर, बडगाम, शोपियाँ और कुलगाम में मुतअद्दिद नौजवानों को हिरासत में लेने के बाद जाली मुकाबलों में शहीद करने को भारतीय साम्राज्य की सफाकियत की बदतरीन मिसाल करार दिया है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो इलाके में जारी कत्ल गारत, गैर कानूनी गिरफ्तारियों और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। हुर्रियत रहनुमा मौलाना सब शबीर क़मी ने अफसोस का इजहार किया है कि मोदी हुकूमत ने अपनी फ़ौज को कश्मीरियों पर मज़ालिम ढाने की खुली छूट दे रखी है, लेकिन इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। फरीदा बहन जी, यास्मीन राजा और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं ने श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान मारूफ आज़ादी पसंद कारकुन सज्जाद अहमद को उनके यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत पेश किया। भारतीय फोर्सेस ने सज्जाद कीनू को सन 1996 में आज ही के दिन शहीद किया था। भारतीय पुलिस ने एक कश्मीरी सहाफ़ी सज्जाद गुल को भारतीय फौजियों के हाथों नौजवान सलीम परे के कत्ल के खिलाफ एहतजाज की वीडियो पोस्ट करने की पादाश में गिरफ्तार कर लिया। फौजियों ने सलीम परे को 3 जनवरी को श्रीनगर के इलाके हारून में शहीद किया था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में सज्जाद गुल की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए भारत में खुलेआम मुसलमानों की नस्लकुशी का मुतालबा करने वाले इंतहा पसंद गिरोह आज़ाद घूम रहे हैं, जबकि भारत की सरपरस्ती में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने वाले कश्मीरी सहाफ़ियों को जेलों में बंद कर दिया जाता है। ऐसा कहना था महबूबा मुफ्ती का। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने एक ट्वीट में मकबूजा कश्मीर के हुक्काम से सज्जाद गुल को फौरी रिहा करने और उनके सहाफ़ती काम से मुतालिक तहकीकात ख़त्म करने का मुतालबा किया है।
उधर भारत की रियासतों उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के लिए 10 फरवरी की तारीख का ऐलान किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र ने हफ्ते के रोज़ रियासती इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि इस रियासत में ये इलेक्शन 7 मरहलों में 7 मार्च तक मुकम्मल होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में रियासती इंतखाबात 14 फरवरी को मुनक्किद होंगे। शिमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में इलाकाई इलेक्शन 2 मरहलों में मुनक्किद होगा। पहले मरहले की वोटिंग 27 फरवरी जबकि दूसरे मरहले की पोलिंग 3 मार्च को होगी। अमेरिका में कोरोना के शिकार 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अस्पताल में दाखिले की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिसंबर के वस्त से अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव के बाद अस्पतालों में छोटे बच्चों के दाखिले में इजाफा देखा गया है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर 1 लाख बच्चों में से 4 से ज्यादा बच्चे कोरोना से मुतासर होकर अस्पताल पहुंचे, जबकि पहले ये शरह इससे तकरीबन आधी थी। अमेरिका में 5 साल से कम उम्र बच्चे ही एक ऐसा ग्रुप हैं जो अब तक वैक्सीन के अहल नहीं हैं। खबर देंगे आपको अफगानिस्तान से, जहां तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा ने अफगान पनाह गुज़ीनों और बढ़ते माशी बहरान के हवाले से बातचीत करने के लिए ईरान का दौरा किया है। अफगान वजारत खारजा के तर्जुमान अब्दुल कहार बल्खी ने एक ट्वीट में बताया कि वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी की सरबराही में आला वफ्द ईरान की दावत पर यह दौरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद ईरान के दरमियान सियासी, इक्तसादी, ट्रांजिट और पनाह गुज़ीनों के मसाइल पर बातचीत करना है। और यूक्रेन के मामले पर अमेरिका और रूस के दरमियान जनीवा में आला सतह के मुज़ाकरात का आगाज आज से हो रहा है। जनीवा में होने वाले इन मुज़ाकरात में अमेरिका की नुमाइंदगी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन करेंगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने रूसी मुतालबात को दिखावा करार दे दिया है। ब्लिंकन का कहना था कि हम रूसी जहरियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक सिफारती हल अब भी मुमकिन है। अमेरिका ने रूस के यूक्रेन पर हमला करने की सूरत में सख्त इक़दामात की धमकी दी है। दूसरी जानिब यूरोपीय ममालिक ने भी यूक्रेन के साथ इसारी यकजहती किया है और यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल ने यूक्रेन की रूस के साथ सरहद का दौरा भी किया है। रूस ने गुज़श्ता साल से ही यूक्रेन की सरहद के करीब हज़ारों फौजी तैनात कर रखे हैं। ईरान में तैयारे को फनी खराबी के बायस अस्फहान शहर की एक सड़क पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। मशहद से उड़ान भरने वाले निजी कंपनी के तैयारे को फनी खराबी के बाद अस्फहान की एक सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी, जिसके नतीजे में 5 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए। तैयारे में 119 मुसाफिर सवार थे। इससे कबल 2020 में भी एक ईरानी तैयारे को फनी खराबी के बायस एयरपोर्ट से बाहर सड़क पर लैंडिंग करनी पड़ी थी। और जेम्स वेब खलाई दूरबीन ने 2 हफ्तों का मरहला मुकम्मल करते हुए आईने का आखिरी पैनल भी खोल लिया है ताकि वो कायनात का मुताला करने के लिए तैयार हो सके। इस मौके पर साइंसदानों ने मुस्तरद का इजहार किया है। नासा हेडक्वार्टर में जेम्स वेब टेलीस्कोप मिशन के प्रोग्राम डायरेक्टर ग्रेग रॉबिन्सन का कहना है कि खला में जेम्स वेब खलाई दूरबीन की सनशील्ड का खुलकर अपनी जगह पर दुरुस्त तरीके से नस्ब होना एक शानदार फतह और इस मिशन की कामयाबी के लिए बहुत अहम है। जेम्स वेब टेलीस्कोप का मिशन अमरीकी, यूरोपीय और कैनेडियन खलाई एजेंसियों का मुश्तरका मंसूबा है। रुख करेंगे कौमी खबरों का। आपको बताएं कि वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो ने कोयटा कराची शाहराह पर बड़ी तादाद में होने वाले ट्रैफिक हादसात के तनाजुर में कौमी शाहराह पर ट्रॉमा सेंटर कायम करने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने महकमा सेहत को हंगामी बुनियादों पर सर्जरी और दीगर तिब्बी सहूलियात से आरास्ता ट्रॉमा सेंटर के क़याम के मंसूबे का PC1 तैयार करने की हिदायत की। महकमा मवासलात को सिविल वर्क्स और मंसूबे के तकनीकी उमूर पर महकमा सेहत को मुआवनत फराहम करने का भी हुक्म दिया है। ट्रॉमा सेंटर्स का क़याम हुकूमत के तरजीहाती मंसूबों में शामिल होगा। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से कायम करदा हल्काबंदी कमेटी ने हल्काबंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी है, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद में 100 नेबरहुड काउंसिलें तश्कील दी जाएंगी। हर नेबरहुड काउंसिल के अंदर 4 वार्ड्स बनाए गए हैं। हल्काबंदियों की इब्तदाई फहरिस्त को आवेज़न कर दिया गया है। इसके हवाले से इन पर तजावीज़ और एतराज़ात 9 जनवरी तक 23 जनवरी दायर किए जा सकते हैं।
پاک بحریہ کے جہازوں PNS راہنورد مددگار اور عبدوز حمزہ نے عمان کا دورہ کیا۔ عمان کے بندرگاہ سلطان بن قابوس آمد پر پاک بحریہ کے جہازوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی اور مشن کمانڈر کے چیف آف سلطان آرم فورسز اور عمانی بحریہ کے سربراہ سے خصوصی ملاقاتیں کی۔ مشن کمانڈر نے کمانڈنگ آفیسر کے ہمراہ عمان کے اعلیٰ عسکری حکام سے بھی اہم ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون کے مزید فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک بحریہ کے افسروں نے عمان کے مختلف عسکری تنصیبات کا بھی دورہ کیا۔ دورے کے آخر میں PNS راہنورد اور عمانی بحریہ کے جہاز شباب نے زیر تربیت کیڈٹس کے لیے مشترکہ سیلنگ مشق کا بھی انعقاد کیا۔ سوات کے علاقے چارباغ میں کمرے میں گیس لیکیج سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے اور ان کی والدہ شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق چاروں لاشوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے واقعے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اہل خانہ سے تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور ناظرین، روشنیوں کا شہر پھولوں کی مہک سے معطر ہو چکا ہے۔ موسم سرما کی سوغات گیندے کے پھولوں کی نمائش سج گئی ہے۔ خوش رنگ پھولوں نے ماحول کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ تفصیلات کراچی سے نورین آصف کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پھول زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھیر دیتے ہیں اور ان کی مہک ماحول میں تازگی کا احساس دیتی ہے۔ موسم خن کی بڑھتے ہی گیندے کے پھولوں کی رعنائیاں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ ایسے میں گیندے کی نمائش کے ذریعے ڈھیروں پھولوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے جو ماحول کو سنہرا کیے ہوئے ہیں۔ نمائش میں آنے والے فطرتی خوبصورتی میں کھو گئے۔ فوکس کریں تو پتہ نہیں لگتا یہ دنیا ہی کچھ اور ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں سارے رنگ بکھیرے ہوئے اور بڑے خوبصورت رنگ ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے، اچھا فیل ہو رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، آنکھوں کو بہت زیادہ سکون مل رہا ہے اس میں۔ اٹس بیوٹیفل کیونکہ پیلے رنگ خوبصورتی ہی پھیل جاتی ہے جیسی دیکھتے ہیں۔ انجوائے کر رہا ہوں یہ پھولے وغیرہ، پہلی بار میں نے کراچی یہاں پر آیا ہوں، بہت اچھا لگا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، کراچی میں ہر دوسرے گارڈن میں اور اس طرح کے پلیسز میں اس طرح کی ایگزیبیشن ہونی چاہیے۔ KMC کی جانب سے 3 روز کے لیے لگائی جانے والی اس نمائش میں گیندے کی مختلف اقسام کرینے سے سجائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ نرسری مالکان کی جانب سے دیگر موسم سرما کے پھول اور خوبصورت گملوں کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں۔ خوبصورت اور دلکش پھولوں نے جہاں ماحول کو رنگین بنایا ہوا ہے، وہیں دیکھنے والوں کے لیے بھی مسرت اور راحت کا باعث بن رہی ہیں۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے زرعی خوشحالی کے پروگرام کے تیسرے مرحلے میں ملک میں گوشت کی پیداوار میں اضافے کے لیے کٹا پال اور کٹا بچاؤ اسکیم کے تحت محکمہ لائف سٹاک نے ضلع اوکاڑہ میں اس سال 10 کروڑ 10 لاکھ روپے مالی اعانت دی ہے۔ تفصیل محمد اشرف سے۔ ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے کٹا پال اسکیم کے تحت 1 کٹے سے لے کر 25 کٹوں پر مشتمل یونٹ کو رجسٹرڈ کیا جا رہا ہے، جنہیں 3 ماہ تک پالنے کے بعد فروخت کرنے پر 4000 روپے فی کٹا کسانوں کو مالی اعانت دی جا رہی ہے۔ کٹا بچاؤ اسکیم کے تحت اس سال 130 کٹوں پر 124 مویشی پال میں 8,45,000 روپے کی مالی اعانت دی گئی ہے۔ کٹے پال اسکیم کے تحت 100 کلو گرام وزن سے لے کر 120 کلو گرام وزن کے کٹے 3 ماہ تک کے لیے فربہ کیے جاتے ہیں، جن کے وزن میں 800 گرام سے 1000 گرام یومیہ اضافہ کیا جاتا ہے۔ 4000 روپیہ ملیا ہے ایک کٹے دا، تے ہون بھی اسی مزید 5 کٹے رکھے نے۔ یہ بہت فائدہ مند سکیم ہے۔ وزیر اعظم کٹا بچاؤ اسکیم کے تحت 1 دن کی عمر سے لے کر 1 ماہ کی عمر کے کٹوں کو ایک بھینس ایک کٹے کی نسبت سے رجسٹرڈ کیا جاتا ہے، جسے 4 ماہ تک پرورش کرنے کے بعد فروخت کیا جا سکتا ہے۔ فروخت کرنے کے بعد مویشی پال کو 6000 روپے مالی اعانت دی جا رہی ہے۔ کٹا بچاؤ اسکیم کے تحت اس سال 2316 کٹے پالنے پر 421 مویشی پال کو 92,64,000 روپے مالی اعانت دی گئی۔ فارمر کو ان کے ڈور سٹیپ پر مفت ویکسینیشن، مفت ڈیورمنگ، علاج معالجہ کے ساتھ ساتھ ان کی مالی معاونت بھی کر رہا ہے۔ محکمہ لائف سٹاک کی طرف سے مویشی پال کو کٹے پالنے کی تربیت قریبی سرکاری شفاخانہ حیوانات کا عملہ مفت فراہم کر رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی کٹا بچاؤ اور کٹا پال جیسی کسان دوست اسکیموں سے غریب کسانوں کو ریلیف ملا ہے اور ملک میں گوشت کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ محمد اشرف، PTV نیوز، رینالہ خورد، اوکاڑہ۔ سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی کے بھائی سالار سنجرانی کراچی میں انتقال کر گئے۔ وہ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ اوتھل کے قریب ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ انہیں زخمی حالت میں کراچی کے نجی ہسپتال داخل کرایا گیا، تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ سالار سنجرانی کی تدفین آج دال بندین میں ہوگی۔
صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو فون کیا اور ان کے بھائی سالار سنجرانی کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے سالار سنجرانی کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ لواحقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین اور وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے چیئرمین سینٹ کے بھائی کی وفات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت اور پسماندگان کو صبر جمیل دے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وفاقی وزیر ریلوے محمد اعظم خان سواتی اور ڈپٹی چیئرمین مرزا محمد آفریدی نے بھی چیئرمین سینٹ سے ان کے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں غمزدہ خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور صادق آباد میں فٹ پاتھ پر جوتے پالش کرنے والے نئے سنگر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد کے اجے کے گھر پہنچ گئے۔ اجے کی خواہش تھی کہ وہ اپنے ہم عمر بچوں کی طرح اسکول جائے۔ غربت نے اس کے ننھے ہاتھوں میں بستہ، قلم اور کتاب کے بجائے پالش اور برش تھما دیا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے اجے کو صادق آباد کے سب سے بڑے اسکول میں داخلہ دلوایا۔ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے اجے کا شاندار استقبال کیا۔ اب جوتیاں پالش کرنے والے ہاتھوں میں پالش اور برش کی بجائے بستہ اور کتابیں ہوں گی۔ اور ناظرین، پاکستان کی فلمی صنعت خصوصاً پنجابی سنیما کے مشہور اداکار سلطان راہی کو ہم سے بچھڑے 26 برس بیت گئے۔ سلطان راہی کے فلمی سفر اور فنی خدمات کے حوالے سے لاہور سے ہمارے نمائندے صادق بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ جان دے یارا جے نہ دس دتا تے تینوں تاپ چڑھ جائے گا۔ پاکستان کی فلمی صنعت کا ذکر ہو اور سلطان راہی کا نام نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بڑے کردار کے مالک اس عظیم انسان نے پاکستان کے پنجابی سینما کو عروج کے ساتھ وقت، حالات اور ظلم کے خلاف اٹھنے والے ایسے علامتی کردار دیے جو آگے چل کر ان کی چھاپ بھی بنے۔ محمد سلطان خان پنجابی فلم میں ظلم، جبر اور جاگیرداری کے خلاف علم برداری کے کرداروں سے کھیلتے کھیلتے سلطان راہی بن گئے۔ سلطان راہی وہ بندہ تھا جس نے لوگوں میں جرت پیدا کی، بزدلوں کو بہادر بنایا۔ فلم باغی سے بطور مہمان اداکار اپنے فلمی سفر کا آغاز کرنے والے سلطان راہی نے اپنی عاجزی، محنت، لگن اور کام کے ذریعے واجبی چہرے اور سادہ شخصیت کا تاثر ایسے زائل کیا کہ اپنے وقت کے مہنگے اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستانی سینما کے کلنٹ اسٹیورٹ کہلائے۔ وہ بات کو اندر اپنے ڈال کے ہضم کر کے اس کو اپنے خون کا گوشت پوست کا حصہ بنا کے پھر وہ ایکٹ کرتا تھا، اور اس کا ایکشن جو ہے وہ پھر پبلک اپروو کرتی تھی اور پبلک اس کو اپریشیٹ کرتی تھی۔ سلطان راہی نے پنجابی فلم بشیرہ سے بڑے کرداروں کی سیڑھی کا وہ سفر شروع کیا جس کے عروج کو زوال تو نہیں آیا، پر وقت اور زندگی کی بے وفائی انہیں ان کے چاہنے والوں سے جدا کر گئی۔ اپنے 40 سالہ فنی سفر میں سلطان راہی نے 703 پنجابی اور 100 سے زائد اردو فلموں میں کام کر کے دنیا میں نام کمایا۔ ان کے سلطان راہی آج ہم میں نہیں، مگر پنجابی سینما کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ صادق بلوچ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ بات ہو جائے اب کچھ میٹھے کی تو سوہن حلوہ یوں تو کئی علاقوں میں بنایا جاتا ہے، لیکن لودھنا کا سوہن حلوہ لذت اور ذائقے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ یہاں آنے والا کوئی بھی سیاح اپنے ہاتھ سے یہ سوغات لے جانا نہیں بھولتا۔ دیسی گھی سے تیار ہونے والا سوہن حلوہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنے الگ ذائقے اور لذت کے لیے مشہور ہے۔ رپورٹ کریں گے عبداللہ ڈاہا۔ جنوبی پنجاب کے ہر شہر میں سون حلوے کی سوغات تیار کی جاتی ہے، لیکن لودھنا کے نوائی علاقہ جلارئی میں تیار ہونے والا سون حلوہ لذت اور معیار کے حوالے سے ملک اور دنیا بھر میں شہرت کا حامل ہے۔ باوجود سے ہمارا کاروبار یہ چلا آ رہا ہے، تو ہم خالص دیسی گھی سے حلوہ تیار کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے فروٹس وغیرہ، بادام، اخروٹ وغیرہ بہت اچھے اعلیٰ طریقے سے بناتے ہیں۔ سون حلوہ اپنے ذائقے اور ماہر کاریگروں کی خاص تیاری کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ لودھنا کے لوگ جہاں اسے خود پسند کرتے ہیں، وہیں اپنے پیاروں کو تحفے کے طور پر بھی بھیجتے ہیں۔ میں ہر سال تقریباً 20 سے 25 کلو لیتا ہوں اور اپنے دوستوں کو بھیجتا ہوں۔ میں آیا ہوں بھالپور سے یہاں سے حلوہ لینے کے لیے، یہاں کا حلوہ بہت مشہور ہے۔ سون حلوے کی تیاری میں خالص دیسی گھی اور دوسرے اجزاء شامل کیے جاتے ہیں۔ سردیوں کے آتے ہی لوگ دوسرے شہروں اور بیرون ملک میں رہنے والے اپنے دوستوں اور عزیزوں کو سون حلوے کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ عبداللہ ڈاہا، پی ٹی وی نیوز، لودھنا۔ السلام
अस्सलाम वालेकुम। मौसम की खबरों में खुशामदीद। मैं हूँ रूज फातिमा। सबसे पहले आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ अजला में जिंदगी अभी तक मामूल पर नहीं आ सकी है। जगलोट, स्कर्दू रोड समेत बालाई इलाकों की सड़कें ताहाल ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं स्कर्दू से कासिम नसीम से। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता दिनों होने वाली शदीद बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ अजला में जिंदगी अभी तक मामूल पर न आ सकी है। बल्तिस्तान और दियामर डिवीजन और हुंजा नगर के बाला इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी होती रही, जिससे इन इलाकों में सर्दी की शदीद लहर बरकरार है। वजीर तामीरात आम्मा गिलगित बल्तिस्तान वजीर मोहम्मद सलीम ने PTV को बताया कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला के माबेन ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बहाल कर लिया है, जबकि बाला इलाकों और नालाजात में मौजूद आबादी तक की सड़कें ताहाल बंद हैं। बल्तिस्तान डिवीजन में डूरू, शिला, गुलतरी, शगरथंग, अरंदू, कुंदुस और हुशे का ज़मीनी राब्ता ताहाल बहाल नहीं हो सका है। जुगलोट स्कर्दो शाहराबी तुंगुस के मकाम पर पहाड़ी तोदा गिरने से बंद है। रावलपिंडी से स्कर्दो आने वाले के कोस्टर भी तोदों के जब्त में आया, जिसके नतीजे में 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। जुगलोट स्कर्दो रोड पर एक हफ्ते में यह दूसरा हादसा है, लिहाजा जिली इंतजामिया ने स्कर्दो में कंट्रोल रूम कायम किया है, जहां से मालूमात हासिल किए बिना लोगों को इस रूट पर सफर करने से गुरेज करने की हिदायत की है। उधर FWO के जराये के मुताबिक शाहराह कराक्रम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया है, ताहम चिलास से आगे बारिश हो रही है, लिहाजा लोगों को शाहराह कराक्रम पर सफर न करने की अपील की है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद से गिलगित और स्कर्दो का फजाई सर्विस भी मुअत्तल रही। महकमे मौसमियात ने इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है, जिसके बायस लोगों को मुहतात रहने की जरूरत है। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, स्कर्दो। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मरी का फ़ज़ाई जायज़ा लिया है, फ़ज़ाई मुआयना किया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नवाज़ आवान मौजूद हैं। नवाज़, अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज सुबह सवेरे मरी पहुंच गए हैं और मरी पहुंच के उन्होंने मरी का फ़ज़ाई दौरा किया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब वज़ीर आला के हमरा हैं। वज़ीर आला को मरी में होने वाले पूरे नुकसानात जो हैं उनके बारे में भी ब्रीफिंग दी गई है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है उसके बारे में वज़ीर आला को बताया गया कि किस तरह वहाँ पे फंसे हुए सियाहों को निकाला गया है और क्या क्या इंतजामात किए गए हैं। वज़ीर आला को इस बारे में पूरी डिटेल दी गई है। उन्होंने पूरे फ़िज़ाई दौरे में जहाँ जहाँ ये रेस्क्यू ऑपरेशन था उसके मुतालिक मालूमात हासिल किए हैं और मुआयना किया है। रात भर भी वज़ीर आला इस पूरे ऑपरेशन की खुद निगरानी करते रहे हैं और अहकामात जारी किए हैं। उनके अहकामात के मुताबिक वहाँ पे जितने भी सरकारी रेस्ट हाउसेस थे उनको भी खोल दिया गया और वहाँ पे महफूज मकामात पे तमाम सयाह जो हैं उनको पहुँचाया गया। तो अब वज़ीर आला जो है फ़िज़ाई दौरे में इस पूरे ऑपरेशन का जायज़ा भी लिया है और जहाँ जहाँ पे मसाइल थे वो उसके बारे में ब्रीफिंग भी ली है। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने वज़ीर आला को तमाम इंतज़ामी अमूर और इमदादी कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी है। जी, चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला पंजाब को इंतज़ामी अमूर के हवाले से ब्रीफिंग दी है। मोहम्मद नवाज़ अवान आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको लिए चलते हैं खेलों की दुनिया में।